morning to you all. Welcome to the webinar Education and Skilling to Actualize Individual Potential, jointly organized by Pallavan Learning System, PLS, Center for Escalation of Peace, and Ritinjali. Pallavan Learning System, or PLS, is an educational research organization that primarily focuses on the concept of learning how to learn and believes in promoting learning in all its various facets and its diverse forms. One of the main objectives of Pallavan Learning Systems is to conduct research and organize seminars and webinars to create and disseminate knowledge so that what we do at PLS remains current and relevant to the rapidly changing times. If you are interested in any of the webinars which we have done in the past, you can drop in the message and we will send you detailed reports about that. Ritinjali is an organization focused on the basis. Shaman, sorry, we haven't let the people in. Okay, you have to go again. Oh, no. Okay. No, that's okay. So hold on. Let me just. He has not let people in. Yeah. Okay. So I have to start again, right? Yeah, start again. When I say start, you take few seconds and start. Okay, just hold on. वैसे मेरी आवाज जा रही है मैम? हाँ वीरेंद्र, आवाज आ रही है, वीडियो नहीं दिख रहा है आपका अभी भी। मेरे पास वीडियो ऑन है मैम। ठीक है, कोई इशू। Okay, 1, 2, 3. Good morning, everyone who have joined. Welcome to the webinar Education and Skilling to Actualize Individual Potential, jointly organized by Pallavan Learning System, Center of Escalation of Peace, and Ritinjali. Pallavan Learning System, or PLS, is an educational research organization that primarily focuses on the concept of learning how to learn and believes in promoting learning in all its various facets and diverse forms. One of the main objectives of Pallavan Learning System is to conduct research and organize seminars and conferences, and we do this for the creation and dissemination of new knowledge so that we can do so that what we do at PLS remains relevant to the rapidly changing times. If you're interested in any of the webinars we have done in the past, please drop in a DM and we will send you a detailed report about our past webinars. Ritinjali is an organization founded on the basis of respect for life, work, and dignity, empowering through holistic education and skilling, and building community capacity and collective processes towards an inclusive society. Since 1995, Ritinjali has worked with marginalized groups, slum dwellers, jail inmates, poverty-stricken individuals, victims of wars and natural disasters through educational and development-related endeavors. And we continue to do so. The Center for Escalation of Peace focuses on creating platforms and establishing programs that lead to the free exchange of ideas across borders, with a distinct focus on empowering young minds. CP takes the view that peace does not refer to the merely absence of war. Peace cannot be taken for granted or merely sustained. Instead, peace needs to be escalated through various strategies and platforms. In this particular conversations, it is very close to our heart. It is about real lives and real journeys about young people who have shown that the right support, personalized learning, skill building, and mentorship, transformation is possible even when life's first chance is not there. The Ritinjali model believes that one size fits all education often leaves many people behind. But when we create learning pathways that adapt to individual needs, match aspirations with skill sets, and combine technical education with dignity and confidence, we open the door to true possibilities. This morning, you will hear from our 3 alumni, Virender, who has joined online, Brijesh and Raghav, who are sitting right with me. They have lived their journeys. Their stories remind us why second chances matter and how important it is for education to meet people where they are.
Before getting into the conversation, I would like to give a small introduction about each of the panel we have here. And before that, I want to introduce myself. I am Shuman Javed. I have been working with Ritinjali from past many years and have closely seen Second Chance School evolve in a better program year on year, and we have touched many milestones together. And Virender, who has joined online, um, hails from Uttar Pradesh and is now a successful entrepreneur in Delhi's fashion circuit. It's a powerful story of grit, growth, and transformation. Virender faced a lot of personal challenges growing up, and he had to work early on in his life to support his family. But in 2016, a chance encounter with Ritinjali Second Chance School, he got on board, and Virender completed his education. Virender's industry exposure began with an internship at the Oberoi, Gurgaon, leading to a full-time role in hospitality, but his heart lay in fashion. He soon pivoted to the apparel industry, working at Orient Craft as a merchandiser before the pandemic disrupted his career. But rather than giving up on his career, he again pivoted it and became a full-time entrepreneur. Today, he runs a thriving fashion and accessories venture from his studio in Shahpur Jat, employing 3 full-time staff and taking home a steady income. Virender's story exemplifies how access to education, skill development, and mentorship can empower young people. Here we have Brijesh. Brijesh's story is equally empowering and resilient. He comes from Basti district from Uttar Pradesh. He migrated to Noida, if I'm not wrong, in 2015 to find jobs. He was working as a security guard and had given up on the aspirations of higher studies. But Second Chance School found him and he found us. And after joining, he discovered his interest in technology and public services. Though he initially trained for Indian Army, he eventually pursued technical education in computer hardware and software, completing an internship at Lee Meridian, Gurgaon, and then securing a job as a computer support engineer at Micromax. And after COVID, he has reinvented himself and went on to the journey of becoming an entrepreneur and launched his own business of door-to-door laptop repair services, which through which he is helping the community around him. And he will share more insights about his journey in the conversations we are going to have. Raghav is very special. He is from our first batch of Second Chance School back in 2004. And through going through the whole program of Second Chance School, he has seen the whole Second Chance School getting evolved. And he has got back to us with a lot of feedback, a lot of love through this journey. And now he is with 11 years of experience in the development sector. Raghav specializing in optimizing operations, managing complex projects, and driving strategic initiatives at Sesame Workshops India. They focus on improving the lives of marginalized communities, particularly in the areas of education and community development. Raghav has worked on impactful projects like disaster relief during the 2004 tsunami and research on the Yamuna River for UNDP funded initiative. They are also passionate about early childhood education, functional literacy and numeracy, and STEM. And they enjoy to engage with communities at large, and he keeps coming back to engage with our alumni, Second Chance School current students, and is a leader in social development sector. So welcome all of you for this conversation. And hopefully we will gain some insights through this conversation so that the students who are watching this or the stakeholders that are watching this gain an insight on how individualized education plan and nurturing each one's differently helps gain meaningful careers. So can we start with Brijesh? Brijesh, I would be speaking in English as well as Hindi. So if you have any questions, please direct it in our chat box.
We will be taking question and answer at the end of the session. So please feel free to point out questions at us. ब्रिजेश, आप जब नोएडा शिफ्ट हुए थे, आप आई थिंक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे थे एंड उसके बाद आप फिर रितंजलि आए. आपकी उस समय क्या होप्स थी? व्हाट वर योर होप्स? एंड आपको व्हेन यू हर्ड फर्स्ट टाइम अबाउट सेकंड चांस स्कूल, व्हाट वर योर थॉट्स? थैंक यू सो मच। जब मैं पहले तो गांव से जब नोएडा शिफ्ट हुआ था, मतलब मोस्टली जॉब के लिए शिफ्ट हुआ था। एक्चुअली मेरा करियर ये था कि मैं आर्मी में जाना चाहता था। देन आई फाउंड ड्यू टू सम मेडिकल इशू, सो इसीलिए मैं उसको ड्रॉप हो गया था वहाँ से। देन सिक्योरिटी गार्ड का नोएडा में आया। देन इसके बाद जब 12 घंटे ड्यूटी जब सिक्योरिटी गार्ड का करता था, देन उसके बाद उसी में खाना बनाना, खाना, एंड लाइक 14 घंटा टोटली उसी पे। एंड एक सिक्योरिटी गार्ड अगर कोई भी जानता तो उनका छुट्टी नहीं होता, मतलब बार 30 डेज ड्यूटी तो ड्यूटी होती है। तो उसमें मतलब मैंने जब वहाँ पे आया, क्योंकि वहाँ से जब शिफ्ट हुआ था कुछ फाइनेंशियल इशू थे, इसकी वजह से मतलब नहीं हो पा रहा था, इसीलिए मैं डायरेक्टली आके नोएडा में सिक्योरिटी गार्ड का ज्वाइन किया। एंड 2 से 3 महीने कंटिन्यू मैंने किया, तो जस्ट आई रियलाइज कि मतलब ऐसे तो नहीं चल पाएगा, मतलब इतना टफ जॉब। एंड उसके बाद मैं इसीलिए शायद, मतलब मुझे लगता कि नहीं, मेरे लिए कुछ और बेटर हो सकता है। देन मेरा एक दोस्त आईने मार्केट में, और जैसे राकेश एंड दिनेश, उन्हीं के थ्रू से मैं रितंजलि के बारे में थोड़ा सा जाना, क्योंकि आईने मार्केट में नाइट स्कूलिंग चलती थी एंड सेकंड चांस के बारे में उन्होंने बताया था मुझे। तो पहले जब रितंजलि के बारे में, मेरे जैसे आपने पूछा कि आपके माइंड में क्या चला कि जब आपने पहली बार सुना रितंजलि के बारे में, उन्होंने बताया कि नहीं, आपका एक होता है कि नोएडा में जब आया तो मुझे यहाँ गांव पे था तो पानी तक मुझे बिल्कुल नहीं खरीदना पड़ता, यहाँ पे आया तो पानी भी खरीद के पीना पड़ता था। देन आई रियलाइज मतलब ऐसा क्या सेकंड चांस है कि जो मतलब हमें फ्री में सब कुछ देगा एंड एजुकेशन भी करेगा। देन मुझे मतलब आगे कोशिश करेगा पढ़ाने का, ये सारी चीजें। तो एक बार मैंने छुट्टी लिया, मतलब मेडिकल इशू देके गार्ड में से, कि एक बार मैं जाके देखूं तो क्या है एक्चुअली में। मैं यहाँ पे आया तो देखा, तो मतलब इन्वायरमेंट बाकी लोगों से थोड़ा सा 1-2 घंटे में देखा तो मुझे लगा कि नहीं ठीक है। देन आई रियलाइज कि ठीक है करना, तो वहाँ पे 4 मंथ 5 मंथ मैंने सिक्योरिटी गार्ड का काम किया। उस मैंने बात किया यहाँ पे। देन यहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटी है, वो मेरा मैच होना चाहिए, जैसे आपका बैकग्राउंड वगैरह सारा कुछ बैकग्राउंड चेक होता है। देन तो वो सारी चीज़ें हमारी चेक हुई। उसके बाद मैं उसमें फील हुआ। उसके बाद फिर दोबारा से रितंजलि में आया, तो मतलब मुझे लगा कि हाँ, कि काफ़ी ये हुआ, हमारे माइंड में ये चल रहा था कि देन आज जब यहाँ पे आया उसके बाद लगा कि हाँ, मतलब कुछ मुझे लगता कि मैं आगे करूँ, तो और भी इंकरेज मिला मुझे आगे, की सपोर्ट मिला है कि स्टाफ से, रितंजलि से। जब मैं लाइफ स्किल क्लास करने जाता था पुलवंजलि में, देन उसके बाद भी वहाँ पे मतलब स्कूल में क्या होता है कि आपको एजुकेशन तो दे देते हैं, पर एक लाइफ जीने का जो तरीका होता है वो नहीं सिखाते हैं। आई थिंक मेरा ओपिनियन है कि लाइफ स्किल क्लास भी अब होने चाहिए स्कूलों में। Definitely, यस। definitely. We agree with that. And I think this is still common feeling that जो स्कूलों में पढ़ाई हो रही है, वो हमें लाइफ के लिए तैयार नहीं कर रही है somehow. वो एक स्पेशली जो पब्लिक सेक्टर में जो एजुकेशन हो रही है वो काफी पीछे है लोगों को तैयार करने में टू लीड अ मीनिंगफुल लाइफ. राइट। And with Second Chance School, we hope to bridge that gap. And यस। thank you for pointing that out, Brijesh. थैंक यू सो मच। My next question would be for Virender. वीरेंद्र काफी यंग उम्र से अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काम पे लग गए थे एंड डेली वेज लेबरर की तरह काम करते थे. आपके क्या सपने रहे उस समय, वीरेंद्र? एंड कैसे आपने ये निर्णय लिया कि आप सेकंड चांस स्कूल आएंगे? क्या रीजंस थे वो ज्वाइन करने के? सबसे पहले गुड मॉर्निंग सबको एंड थैंक यू कि मुझे रितंजलि से सपोर्ट मिला. आज मैं यहाँ पे हूँ रितंजलि के ही सपोर्ट से. एंड सेकंड थिंग, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा अपना लाइफ का जर्नी, कि मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई. स्टार्टिंग में होता ना कि जब तक फैमिली आपके पीछे सपोर्ट में खड़ी है तब तक आपको कोई इशू नहीं है, लेकिन जब जिम्मेदारी आपके सर पे आती है तो आप उम्र से पहले बड़े हो जाते हैं. तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि जब मैं 9 साल का था तभी मेरे फादर का डेथ हो गया था. और उसके बाद
सारी चीजें जिम्मेदारियां सर पे आ गई, जब किसी चीज की कमी हो महसूस होने लगती है, तब लगता है कि नहीं, मुझे भी आगे कुछ काम करना चाहिए। तो मैं 13 साल की एज से ही मैं काम करना स्टार्ट कर दिया था, इवन गांव में एज अ लेबर। लाइक यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं होता जैसे शहर में है कि 18 साल से पहले काम नहीं कर सकते, चाइल्ड लेबर का कुछ इशू। तो यहाँ पे ऐसा इशू नहीं है अभी विलेज में, सिटी में है। तो मैं 13 ईयर के एज में ही काम करना स्टार्ट कर दिया। और बल्कि पढ़ने में भी थोड़ा मन था, लेकिन पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था। बस मन था कि हाँ कुछ करके आगे बढ़ना है, फैमिली को सपोर्ट करना है। तो एक मेरे मामा के गांव के हैं, उनको मतलब जानते थे, तो उन्होंने बल्कि देखा कि मेहनत कर रहा है बंदा और पढ़ने में भी है, तो उन्होंने ही बल्कि मुझे सपोर्ट किए कि अगर पढ़ना चाहते हो तो दिल्ली ले चलूं। तो मैं उनकी बातों पे ज्यादातर भरोसा करता था, क्योंकि वो पढ़ के अच्छे से काम कर रहे थे, उनको देख के ही मैं आ गया आया था। मुझे कुछ पता भी नहीं था कि रितिंजली क्या है, क्या कराती है, मुझे कुछ भी नहीं पता। बस उनके भरोसे से कहे ऐसे मैं चला आया दिल्ली। और आया, पहली बार मैं सिटी में गया था तो बहुत सारी चीजें मेरे को अजीब अजीब सी लग रही थी। और जो कि मैंने यहाँ से 10th तक करके गया था, और जब तक मैंने 10th तक पढ़ाई किया था तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था एटलीस्ट मुझे आगे करना क्या है। क्योंकि मेरे गांव से अभी आज तक कोई भी लड़का ऐसा नहीं है जो ऑफिशियल काम कर रहा हो। यहाँ पे कुछ है गाड़ी बनाने के काम कर रहे हैं, कोई ड्राइवरी का काम कर रहा है, कोई स्टील या मेटल की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, या किसी कोई कपड़े के उसमें काम कर रहा है लाइक सेल्समैन। तो इसी टाइप में तो मेरे भी माइंड में यही चीज ही घुसा था कि मुझे भी ऐसा कुछ काम मिल जाएगा, मैं भी ऐसा कुछ कर लूंगा। और ये इसी सोच से मैं यहाँ आया था। जब मैंने क्लासेस स्टार्ट किया पल्लवांजलि जाना, एंड वहाँ पे लाइफ स्किल, इंग्लिश स्पीकिंग एंड ग्रूमिंग की कई सारे क्लासेस जब स्टार्ट होने लगी और उस माहौल में रहने लगा, तब मेरा भी माइंड खुला कि नहीं, जो मैं सोच रहा था वो मेरी सोच बहुत छोटी सी थी। मैं इवन यहाँ पे बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो अपने ऊपर मेहनत करके फोकस करके फिर मैंने 6 महीने वहाँ पे पढ़ाई किया, और साथ ही साथ मैं अपने आपको बिल्डअप करने के लिए सोसाइटी में कैसे बोलना है, कैसे लोगों के साथ रहना है, मैं ट्रेनिंग 6 महीने किया होटल में, ओबोरॉय में। और जो कि ओबेरॉय में मैंने 6 महीने के बाद मेरा काम बहुत अच्छा उनको लगा, इवन मुझे वहाँ पे जॉब भी ऑफर की है, मैंने कुछ समय तक जॉब भी किया। लेकिन यहाँ यहाँ पे मैं 12th तक पढ़ाई दिल्ली से रितिंजली के थ्रू मैं करना शुरू कर दिया था। अब जब साल भर हुआ तो मुझे ये हुआ कि प्रमोशन के लिए आगे बढ़ाना है। तो आगे बढ़ाने के लिए वो मेरे से एजुकेशन ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, सेकंड थिंग बोल रहे हैं कि आप HM कर लो, तभी आपको हम आगे प्रमोट कर सकते हैं। तो अब मैं HM करने के लिए जब प्लान किया तो मुझे पता चला कि वो 3 से 4 साल का मुझे टाइम देना पड़ेगा, प्लस अमाउंट भी बहुत ज्यादा लग रहा है। तो ना ही उस समय टाइम था और ना ही उतना अमाउंट के मतलब व्यवस्था कर पाऊँ। सो रितिंजली से मैंने फिर से सपोर्ट के लिए बोला, क्योंकि मेरे पास उस समय दो था मतलब मन में काम करने का। एक तो होटल में चला गया था, तो होटल एक पसंद आ गया था कि चलो ठीक है। लेकिन दूसरा ये चल रहा था कि फैशन लाइन में मुझे कुछ करना है, क्योंकि जो मुझे लेके गए थे वो फैशन लाइन से थे, तो उनको देख के ही मेरे अंदर वो जिज्ञासा थी। तो जब फैशन लाइन के बारे में पता किया तो वहाँ पे मतलब बेसिक कोर्स स्टार्ट हो रहे थे। तो मैंने रितिंजली से काफी रिक्वेस्ट किया। तो फाइनली मेरा 1 साल होने के बाद भी उन्होंने मेरा वहाँ पे एडमिशन करवाया, एंड मैं वहाँ पे भी जी जान लगा के पढ़ाई किया और उस चीज को समझा। और मेरी ट्रेनिंग ओरिएंट क्राफ्ट में लगी। और Yeah. ओरिएंट क्राफ्ट में आफ्टर 4 मंथ मेरी ट्रेनिंग चली, और ट्रेनिंग के उस बीच में इतना अच्छे से परफॉर्मेंस वहाँ पे दिया, इतना अच्छा काम किया कि मुझे वहाँ नहीं बोलना पड़ा कि आप मुझे जॉब दो, बल्कि वो खुद बोल रहे हैं अगर आप जॉब करना चाहते हो तो हमारे पास अवेलेबल है, सीट आ जाइए। तो I मैंने think वहाँ this से is a मेरी very good example of how when you get the job that you're meant to do, you're good at, promotions will follow you, job will follow you. एंड वीरेंद्र, आपकी जर्नी इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट कि अपने मन की और अपने स्किल सेट और अपने एस्पिरेशंस के हिसाब से हम जब चीजें करते हैं तो पूरे दिल लगा के करते हैं, एंड फिर जॉब हमेशा आसानी से मिल जाती है, उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ भी होती है। थैंक यू वीरेंद्र फॉर शेयरिंग दैट। राघव, आप क्योंकि फर्स्ट बैच ऑफ सेकेंड चांस स्कूल से है, सो व्हाट वर द बिगेस्ट बैरियर्स फॉर यू at that time to access the opportunities you have right now?
ओके। इसके ऊपर थोड़ा आप बताइए। बिल्कुल। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे रितिंजली जो है वो मेरे ब्लड में है। क्योंकि आज जो भी मैं हूँ वो रितिंजली की वजह से हूँ। और जो भी कर पा रहा हूँ, जो भी बोल पा रहा हूँ, रितिंजली की वजह से हूँ, बोल रहा हूँ। मेरी ग्रैंडमदर और मेरे फादर के साथ में यहाँ रहता था। और मेरे फादर 2004 में एक्सपायर हुए, जब मैं 10th क्लास में पास आउट हुआ था जस्ट, और 14 साल का था। उसके बाद में जब मेरे फादर एक्सपायर हो गए तो मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि कि मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा और सब चीज़ें। तो मैं गाँव गया, उनका सब क्रेमेशन और वो सब किया। और उसके बाद में बहुत सारे लोग, मेरे टीचर्स और बाकी मेरे फादर के फ्रेंड और बाकी लोगों से बात हुआ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम वापस दिल्ली आओ और कुछ ना कुछ हम लोग मिलके अच्छा करेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं वापस आया और एक दिन मेरी टीचर का स्टडी बूथ था वहाँ पे गुलमोहर पार्क में। तो मैं स्टडी बूथ पे ऐसे ही 2-3 घंटे के लिए जाता था। मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा टाइम पास भी होगा, थोड़ा-सा लर्निंग होगा और अच्छा रहेगा और कुछ पैसे भी मिलेंगे ऑफ कोर्स। तो वो किया। उसके बाद में एक दिन सडनली न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में मैंने देखा। और 198 पे कॉल लगा के और मैंने वहाँ पूछा कि ऐसे बच्चों के लिए हो सकता है जिनके मदर फादर नहीं है? तो उन्होंने बोला हाँ, हाँ, बिल्कुल है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप आइए। तो मैं वहाँ गया और मिला उनसे, बातचीत किया। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम आपको आपको पढ़ना है और आगे बढ़ना है, तो हम आपको ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट कराएँगे जो आपके सपनों को उड़ान देंगे। तो मैं फिर रितिंजली में मेरे को जॉइन कराया। और मैं जब यहाँ आया तो उस समय सुभज्योति घोषाल थे प्रोग्राम मैनेजर, और सोनाली अत्री द डायरेक्टर, एंड देन मिस्टर कपूर। और सभी लोगों से मिलके, मतलब, और गोविंद थे यहाँ पे वार्डन। Yeah. और फर्स्ट बैच था, क्योंकि 2 ही बच्चे थे हम लोग स्टार्टिंग में। तो बहुत अच्छा था, बहुत केयर, और मतलब लाइक एक घर की तरह जो रखा गया हम लोगों को। और तो बहुत जो बैरियर था वो हमारे लिए ये था कि हम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आते हैं और हमें इतनी सारी चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में नहीं पता है। हमारी इंग्लिश में प्रॉब्लम थी और हमें अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं पता था, कहाँ जाना है, क्या करना है और क्या-क्या कोर्सेज़ हैं, है ना? कितनी फीस लगेगी, क्या होगा, हमें कुछ नहीं पता था। लेकिन जब रितिंजली में मैं आया, तो वो सारे बैरियर जो मेरे सामने थे, वो रितिंजली ने एक-एक करके तोड़ना शुरू किया। और उसके बाद मेरा एजुकेशन में मैंने 12th करा। उसके बाद एजुकेशन करते-करते फिर मैंने जॉब शुरू करा 12th करने के बाद। और धीरे-धीरे करके मैंने ग्रेजुएशन किया। और आज मैं मास्टर्स एमएसडब्ल्यू भी कर चुका हूँ और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। और बाकी मैं बीच में शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच। Thank you, Raghav. I think you coming back to social sector and giving back the opportunity you had, you didn't had growing up, speaks a lot about you. So thank you for that, actually. वीरेंद्र, मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ दूसरा। आपने बोला 10वीं तक आपने अपने गांव में पढ़ाई करी थी एंड उसके बाद यस फिर आप दिल्ली आए थे, राइट? आपने दिल्ली जी आके काफी वोकेशनल ट्रेनिंग करी, टेलरिंग में, फैशन टेक्नोलॉजी में, प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन यस इंटर्नशिप्स भी करी। तो यस ये 10वीं तक की पढ़ाई कैसे डिफरेंट है यहाँ आके रितिंजली में पढ़ाई होने के? जैसे मैं बताऊं, अभी भी ऐसा है विलेज में। अभी धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। लाइक यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से आपको बताया जाता है कि आप आगे जाके ये करोगे। ऐसा मतलब कोई पाथ डिसाइड नहीं करते। यहाँ पे एक सिंपल है कि आप फर्स्ट से लेकर 10th 12th तक पढ़ो, देन डिसाइड होएगा कि हाँ अच्छा आगे करना क्या है। लेकिन वहां पे आपसे पहले ही यही चीज पूछा जा रहा है कि आप करना चाह रहे हो क्या चीज, ताकि उस सेक्टर में डाला जाए, वो ट्रेनिंग आपको दिया जाए, वैसे लोगों से साथ मिलवाया जाए। बट यहाँ भी यही चीजें डिफरेंस है। जो मैंने यहाँ पे डिसीजन नहीं ले पाया था, जो कि रितिंजली जहाँ पे मैंने डिसीजन लिया कि मेरे लिए ये चीज बेहतर हो सकती है। Yeah, yeah. I think having an hands-on learning experience makes you make better decisions about your careers. हम कितना भी किताबों में पढ़ ले, कितना भी देख ले कि कौन से सेक्टर्स है, कौन सी जॉब्स हैं, काफी मेन स्ट्रीम चीजें समझ आती है उसमें, लेकिन एक्चुअली रियलिटी में हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज, जब तक हम वो खुद करके नहीं देख लेते, हमें नहीं पता चलती है. So यस I think that is something I will take away from Virendra's answer.
ब्रिजेश, आप आर्मी चाहते थे, आर्मी में जाना चाहते थे, लेकिन फिर आपने आईटी सेक्टर में अपना करियर शिफ्ट किया। ये शिफ्ट कैसे किया आपने, और आईटी सेक्टर ही क्यों चुना, एंड ऐसी कौन सी चीजें थी जिसने आपको इन्फ्लुएंस किया आईटी सेक्टर में आने के लिए? ओके। सो जैसा कि आर्मी का मेरा चॉइस, तो हमारे वहाँ पे क्या है कि अगर कोई इंटर पास होता है देन सारे इनका यही होता है, बस मुझे फोर्स लाइन में जाना है, किसी भी फोर्स लाइन में जाना है। तो मेरा भी वही जुनून था, मुझे किसी भी फोर्स लाइन में जाना है, बस या आर्मी हो, पुलिस हो, या बीएसएफ, मतलब एनी, मतलब कुछ भी हो। देन सब कुछ में ठीक था। कुछ ऐसे मेडिकल प्रॉब्लम थी कि जो आर्मी के लिए मैं सूटेबल नहीं था। तो सबसे पहले मुझे पता, मतलब अपने आप को ही पता चलता है कि हमारे अंदर कमी क्या है, मतलब Yeah. इंसान के अंदर कमी क्या है, एंड फिट होगा या नहीं होगा, फालतू में करने से कोई फायदा नहीं। देन आई फाउंड कि नहीं, ये चीज़ मुझे प्रॉब्लम है, ये 110% मैं जानता हूँ कि इसके ये प्रॉब्लम होने के वजह से मुझे आर्मी में सिलेक्शन नहीं मिल पाएगी। देन उसके बाद मैंने चूज किया, नहीं मुझे कुछ ऐसा चीज़ करनी है कि जो आने वाले समय में और हमारे लिए बेहतर होगा। तो मतलब मैंने भी यहाँ पे जब इसके पहले तो नहीं सोचा, जब यहाँ पे आया उसके बाद मुझे दिमाग खुला कि नहीं, ये लाइन ठीक है। तो मैं बस ऐसे सर्च कर रहा था, देखा, काफ़ी चीज़ इस पे सर्च किया कि मतलब नहीं, आईटी सेक्टर हमारे लिए बेहतर होगा। और मेरा पहले से भी थोड़ा-सा इंटरेस्ट था कुछ, मतलब मैकेनिकल टीप चीज़ में, कुछ उस टाइप का होता ना कि जैसे कुछ टेक्निकल चीज़ में काफ़ी दिमाग लगा, जैसे कुछ काम कर रहा हूँ टेक्निकल चीज़ में, काम करते-करते मुझे खाना भी भूल जाता था कि मतलब नहीं, मतलब लगता था काम। तो उसमें जब इंटरेस्ट बढ़ा, इसीलिए मुझे डिसाइड किया नहीं, मुझे कुछ आईटी सेक्टर में घुसना है। देन उसी समय शिफ्ट हुआ कि मुझे आईटी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, सब कुछ टेक्निकल से रिलेटेड बेस है। अब एआई का ज़माना आप देख ही रहे हैं कि कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गया। देन उसके बाद मैंने डिसाइड किया नहीं, आने वाले समय में सब कुछ टेक्निकल बेस पे हो जाएगा, इसीलिए मैंने डिसाइड किया। आईटी सेक्टर भी बहुत सेक्टर है, इसमें भी अलग-अलग लाइन है। तो मुझे ऑपरेशन में इंटरेस्ट था, तो ऑपरेशन सेक्शन मैंने इसी उस टाइम पे चूज़ किया। एंड आईटी सेक्टर तो बहुत बड़ा है, कोई कोडिंग को डेवलपर है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, कोई साइट का है, एंड कोई नेटवर्क मास्टर है। देन डिफरेंट सेक्टर है, उस आईटी में भी पूरा एक समुद्र है। उसके बाद जब अंदर घुसा, उसके बाद जब रिसर्च किया, उसके बाद पता चला नहीं है। देन आई डिसाइड कि नहीं, मुझे आईटी सेक्टर ऑपरेशन में जाना है, देन आई कैन एवरीथिंग। आई थिंक या दिस इज सच अ इंसाइटफुल थिंग कि आपको एग्जैक्टली पता था कि मुझे आईटी सेक्टर के इतने बड़े सेक्टर में किस डायरेक्शन में डायरेक्ट जाना है। um, ये ये एक्चुअली ये इसके डायरेक्शन में ये सारी सपोर्ट, मतलब रितंजलि से ये जो माइंड में कंफ्यूजन था, क्योंकि इंटरनेट पे उतनी सारी चीज़ें सटीक नहीं मिलती। तो जो यहाँ के टीचर्स वगैरह थे, कभी-कभी कंफ्यूजन होता था, तो उनसे भी बात करते थे कि सर ये लाइन है, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, थोड़ा-सा एक्सप्लोर करो, फिर और करो, तो उससे उसमें फिर नॉलेज काफ़ी बढ़ती है। देन आई डिसाइड कि नहीं, मुझे इसी लाइन में डायरेक्शन में जाना। और एक समय ऐसा भी आता है स्टूडेंट के लाइफ में, मतलब मेरे पर्सनली बता रहा हूँ, मेरा ऐसा टाइम आया हुआ था कि मतलब ऐसे मोड़ पे खड़ा हूँ, आपको आपको उस मोड़ पे खड़े हो, वहाँ पे 4 रास्ते हैं, आपको कन्फ्यूज़न होगा कि इस रास्ते से जाऊँ, कि इस रास्ते से जाऊँ, इस रास्ते से जाऊँ। अगर वही बंदा कोई परफेक्ट रास्ता पकड़ लेता है एंड प्लेटफ़ॉर्म सही से पा जाता है, देन उसके बाद वो कंटिन्यू अपना जर्नी स्टार्ट कर सकता है। एंड ये परफेक्ट रास्ता कैसे पता चलता है? परफेक्ट रास्ता ये तो अपना इंटरेस्ट, एक होता है अपना इंटरेस्ट, एंड देन कुछ लोगों का सपोर्ट भी होना चाहिए। और एक होता है सपोर्ट, बिना सपोर्ट का आप कुछ नहीं कर पाओगे। एंड सोर्स भी, सपोर्ट भी, जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक कोई, क्योंकि मुझे लगता है कि बिना सपोर्ट का मैं इस लेवल पे नहीं आ सकता। आज ये जो सपोर्ट मुझे मिला है, तभी मैं इस लेवल पे बैठा हूँ। करेक्ट, आई थिंक जो एक इंडिविजुअल सपोर्ट मिलता है राइट, सबको, दैट मेक्स अ डिफरेंस कि वो एक एक्स्ट्रा माइल जा सके हम टू काउंसिल स्टूडेंट्स टू राइट, राइट। प्रोवाइड दैट पाथवे। थैंक यू। एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि और अपने आप से भी थोड़ा-सा क्वेश्चन पूछना चाहिए डेफिनेटली। कि मतलब हम किस चीज़ में बेटर हैं। मतलब अपने आप से बेहतर कोई, ठीक है, बंदा कोई फीडबैक दे दे तो अलग बात है। उस फीडबैक को लो एंड यूटिलाइज़ करो उसको। पर अपने आप से भी एक बार पूछो क्वेश्चन कि मतलब नहीं, इस लाइन में मैं ठीक हूँ या नहीं ठीक हूँ? देन अंदर से ही आपको फ़ील आएगा नहीं यार, हाँ, ठीक है ये चीज़। डेफिनेटली यस, सेल्फ अवेयरनेस यस, होनी भी जरूरी है, राइट, एंड खुद को देखना कि आप कितने पानी में हैं राइट। इस स्किल सेट के। थैंक यू ब्रिजेश, दैट्स अ ग्रेट आंसर। राघव, आप क्योंकि डेवलपमेंट सेक्टर में काफी सारे प्रोजेक्ट्स मैनेज करते हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी स्किल सेट है जो टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ाता है लेकिन बहुत जरूरी है करियर्स बनाने में, किसी भी टाइप का करियर? सो बेसिकली क्या है कि टेक्स्ट बुक जो है वो हमारा नींव रखता है, ठीक है? वो सिर्फ बताता है कि थ्योरी के बेस में कि क्या-क्या चीज़ें हैं, कैसे-कैसे उसको पढ़ा जाए और कैसे उसके बारे में समझा जाए।
चाहे वो फील्ड कोई सा भी हो, राइट। लेकिन जो जो प्रैक्टिकल वर्क है ना, जो आप संस्था के साथ काम करते हैं तब आप वहाँ सीखते हैं, जो आपके लीडर्स है वहाँ पे आप जब उनके नेतृत्व में जब काम करते हैं तो वहाँ सीखते हैं, तो वो जो चीज है वो टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगी आपको। और यही वजह है कि आज जो भी हम लोग कर रहे हैं, है ना, वो संस्था ने जो हमें दिया है, और वही चीज हम बैक टू सोसाइटी हम देना चाहते हैं और दे रहे हैं इनफैक्ट। और जो लीडर्स हैं, जो हमारे बॉसेस रहे हैं, जो संस्थाएं हम के साथ हमने काम किया है, उन्होंने जो क्या चल रहा है और क्या नया हो रहा है और क्या नया आने वाला है, उसके प्रति वो हमें जागरूक करते हैं और वो हमें वो सिखाते हैं कि तुम्हारा जो सिर्फ यहीं तक नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ना है, और ठीक है, तो आपको ये भी सीखना है, आपको ये भी सीखना है। ये सारी जो प्रैक्टिकल जो जो सीख है, ठीक है, वो अपने लीडर से और संस्था के गाइडेंस से ही मिलती है, और वो टेक्स्ट बुक में नहीं है। I बिल्कुल। think mentorship मेंटोरशिप इज वेरी mentorship is what you इंपॉर्टेंट। were trying to say कि यस, mentorship is such a uh, departing thing from textbook करेक्ट। कि इंडिविजुअलाइज्ड चीजें समझ आती है, सेक्टर के एक्सपर्ट्स के साथ सीखने को मौका हाँ, मिलता है, हाँ, which is so great. Mentorship is very crucial part of second chance school, as करेक्ट। you know, and we encourage students कि आप पूछिए, सवाल पूछिए, seek बिल्कुल, out mentorship in every sector that you are going to be part of. So करेक्ट। yeah, thank you for pointing that out, Raghav. um, मेरे जो नेक्स्ट सवाल होंगे वो कुछ इस प्रकार होंगे कि आप में से काफी लोग, आप स्पेशली तीनों, कहीं और रहते थे और दिल्ली शिफ्ट हुए नौकरी की तलाश में या बेटर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में। तो ब्रिजेश, जब आप अपने गांव से नोएडा एंड देन अभी गुड़गांव शिफ्ट हुए हैं, क्या ये माइग्रेशन आपकी चॉइस थी या ये एक जरूरत थी उस टाइप समय की? एंड क्या रियलिटी थी उस टाइम की माइग्रेशन के टाइम की, अपना अपना गांव, अपना शहर छोड़ के दिल्ली आना? जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि किसी का मतलब अपना शहर एक जो होता है जहाँ पे जन्म लोग लेते हैं, छोड़ने का तो मन किसी का नहीं करता, पर एक मजबूरी होती है, अगर नहीं छोड़ोगे तो मतलब आगे नहीं बढ़ पाओगे। देन पहले तो देखो कि छोड़ना ही था, क्योंकि आगे किसी मतलब एम्प्लॉय या जॉब करने के लिए या कुछ भी अपना पर्सनल कुछ करने के लिए, तो सबसे पहले तो माइग्रेट आए नॉलेज के लिए। तो माइग्रेट इसीलिए कि वहाँ से पहले नोएडा है। नोएडा में जब आया आया तो मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड, जैसा कि मैंने बताया, देन उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, फिर देन दिल्ली मूव हुआ रितेंद्र के संस्था के साथ में। ठीक है, देन यहाँ से जो सारी कुछ सीख मिली, देन यहाँ का ट्रांजेक्शन जो आउट हुआ, देन इन मतलब इंडिपेंडेंस। उसके बाद मैंने फिर खुद का अपना मतलब किराए पे लिया, अपना नहीं है तो किराए पे लिया, वहाँ पे जाके सब कुछ अपना खाना पीना बनाना एवरीथिंग। तो एक हमें भी लाइफ में कुछ सीख देती है ये सारी चीजें, मतलब मूव करना, ये करना, देन गुड़गांव जाना, वहाँ पे एक अलग वो करना सारी चीजें। तो ये हमारे लिए मतलब काफी सीख हो, एक होता मजबूरी भी होता है, देन इसके साथ मुझे सीख भी मिलती है। या 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 आई थिंक शुरू हम मजबूरी से करते यस, हैं, बट मजबूरी से। फिर हम सीख जाते हैं उन रियलिटीज को फेस करना, अपने लोगों को छोड़ना। सेम आपने बोला जैसे पानी आपने कभी नहीं खरीदा अपने राइट, गांव में, राइट, बट राइट। दिल्ली आके वो खरीदना पड़ा। राइट, राइट, तो इस टाइप की रियलिटीज है हमारे राइट, राइट, यंगस्टर। अभी भी काफी लोग, यंग लोग मूव करते हैं अपने गांव शहरों से दिल्ली। तो आई थिंक उनके लिए ये एक रिमाइंडर है कि राइट। स्टार्टिंग में मुश्किल होगा, मुश्किल, काफी बट मुश्किल काफी होती है। मुश्किल होगा, बट धीरे धीरे आई थिंक काफी लर्निंग है इस जर्नी में। वीरेंद्र, आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम किया, फिर अपैरल मैन्युफैक्चरिंग में आपने काम किया, एंड देन फिर कोविड की वजह से यस, काफी आपकी जॉब जॉब चली गई थी। तो आपको किस चीज ने यस कॉन्फिडेंस दिया कि आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर पाओगे आफ्टर ओके कोविड? मैम। कोई भी होता है, जब काम शुरू करता है तो काम के कुछ समय के बाद सबको लगता है कि यार कुछ करते करते अपना करना जरूरी है। सब लोग यही बोलते हैं मोस्टली। आज के समय में 80 to 90% बोलते हैं अपना करना, लेकिन क्या करना है यही नहीं पता। कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है। एटलीस्ट मेरे भी वही था कि मुझे कुछ करना है, अच्छा देखेंगे आगे। बट जब आफ्टर कोविड, जब मैं ओरिएंट में था, तो 2020 में जब कोविड आया, तो वहां से काफी लोगों की जॉब चली गई, मेरी भी गई। तो उस समय के बाद
ये था कि दिमाग खुल गया कि कहीं ना कहीं अब करना है, कहीं ना कहीं और जो भी काम मिल जाए। फिर मैंने वहां से स्टार्ट किया, दूसरे कंपनी में गया, सामिक एक्सपोर्ट हाउस। वो लेदर की कंपनी थी, लाइक था फैशन का ही, लाइक वहाँ वॉलेट था और बैग्स बनते थे, फैशन एक्सेसरीज था। सो मैंने कुछ समय लेदर में काम किया, एंड फिर मैंने होम फर्निशिंग में भी काम किया और एक्सेसरीज में काम किया, देन अगेन अपैरल में काम किया। तो बहुत सारी जगह पे काम करने के बाद मुझे ये पता चला कि मैं कहाँ से अपना शुरू कर सकता हूँ। कपड़े का भी मैं काम कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ा सकता हूँ, मैं लेदर में भी आगे बढ़ा सकता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपके पास क्या वो उतने पैसे हैं आपको आगे करने के लिए, आपके पास कांटेक्ट हैं, आप उस चीज की रिसोर्सेस हैं या नहीं। तो ये चीजें जो था कपड़ा और ये लेदर, ये सब मेरे लिए बहुत ज्यादा हैवी था करने के लिए। लेकिन जो एक्सेसरीज वाला था, ये मैं काफी समय से मैं काम कर रहा था। इवन जहां मैं लास्ट टाइम काम कर रहा था, वहाँ की ओनर इवन 2-2 3-3 महीने के लिए आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री रहती थी। इवन उनकी जगह पे मुझे सारा संभालना था। तो जब आप एक सीनियर लेवल पे काम करते हैं तो आपको अच्छा बुरा सारी चीज जगह का पता चल जाता है कि कहाँ पे कौन सी लूप है, कहाँ पे क्या फायदा क्या नुकसान है। तो वहीं से ही मुझे सपोर्ट मिला। और बल्कि किसी ने, मतलब जो वेंडर थे, मेरे रहने पे वहाँ काम जब कर रहा था, तो उनको काफी चीजें सपोर्ट मिल रहा था। लेकिन कुछ समय के बाद मैंने वहाँ भी छोड़ दिया था, ओनर के साथ कुछ इशू हुआ मेरा। देन उन्होंने खुद सपोर्ट किया कि हमारे पास तो बहुत सारे काम हैं, आप ही क्यों नहीं करते। आप कारीगर को जानते हो, आप मार्केट को जानते हो, क्या मुझे चाहिए, क्या मार्केट में चल रहा है। तो बल्कि मुझे उनसे सपोर्ट मिला, और इवन मेरे पास कुछ अमाउंट थे जो मैंने सेविंग कर रखे थे। मैंने मिनिमम लेवल से स्टार्ट कर दिया, और आज मेरे पास 3 लोग हैं, काम कर रहे हैं, और That's अच्छा great. खासा उनको भी पैसे दे रहा हूँ। That's great, Virender. I feel you were very confident on your skill sets to launch your own thing, and you seized that opportunity. COVID, I think, joblessness होना एक बहाना था आपके entrepreneurial जर्नी के लिए। मैं ऐसा पर्सनली फील मैम, करती हूँ। मुझे मुझे ये लगता है कि जब भी आपका कोई रास्ता बंद होता है तो उसके मुकाबले 2-3 रास्ते खुल जाते हैं। आपको पहचानना जरूरी होता है कि आप किस में जाना, किस में करना क्या है। अगर रास्ता बंद होता है, दूसरा ढूंढो, 2-3 मिलेगा। Definitely, that is, we should all learn from Virender that thing. Raghav, my next question is for you कि क्योंकि आप एक काफी एक्सपीरियंस होल्डर है इस सेक्टर में, एंड आपने देखा होगा काफी लोग माइग्रेट अभी भी करते हैं। तो जो यूथ अभी भी माइग्रेट कर रहे हैं, उनके सपोर्ट के लिए क्या चीजें जरूरी है आपके एक्सपीरियंस से? बहुत अच्छा सवाल है। और इसमें क्या है कि गांव में आज भी जो एजुकेशन का जो स्तर है बहुत नीचे है। और कई जगह आप जाएंगे तो देखेंगे तो 8वीं तक का स्कूल है, लेकिन उसके आगे का स्कूल नहीं है। आपको 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाना है। और स्पेशली फॉर गर्ल्स, जिनके लिए फादर्स जो पेरेंट्स है वो भेजना ही नहीं चाहते, क्योंकि स्कूल वो कैसे जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है ना। और सिक्योरिटी इश्यूज है, बहुत सारी चीजें हैं। और बहुत सारे लोग जो है वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो बड़े बड़े शहरों की तरफ मूव ऑन करते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और जालंधर और इस सारी सिटीज में मूव करते हैं काम करने के लिए। तो ज्यादा एजुकेशन ना होने की वजह से वो लेबर बन के ही रह जाते हैं, है ना। और वो जब जाते हैं वहां पे तो उनको पता ही नहीं होता है कि वहां का जो कैसा दृश्य होगा, और कैसे वो कहाँ रहेंगे, पानी पीने की अच्छी व्यवस्था है कि नहीं है ना। जिस जगह वो रह रहे हैं क्या वो हाइजीनिक है या नहीं है, और क्या चीजें वो कितना कमाएंगे और कितना खर्च करेंगे और कितना बचा के अपनी फैमिली को वापस भेजेंगे, है ना। तो ये जो चैलेंजेस है वो चलता ही रहा है। और मैं यूपी से हूँ, और यूपी और बिहार का जो जो पब्लिक है वो मोस्टली क्या कहते हैं माइग्रेट होके और शहरों की तरफ जाता है। जो यंग जो लोग हैं वो जाते हैं। और लास्ट में मैं कहूँगा कि इन सब चीज़ों को देखते हुए जो मैंने मतलब लाइक मेरे लाइफ में मैंने फेस किया बहुत सारी चीज़ें, और मैं जब उन लोगों से बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को कनेक्ट कर पाता हूँ कि जो सेम जो चीज़ था, जो मुझे भी नहीं पता था कि भाई मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे रहना है, और क्या क्या सुविधाएं आगे है, क्या क्या
एजुकेशन में क्या क्या कर सकता हूँ मैं, वो सब चीजें नहीं पता था। सेम प्रॉब्लम उनके साथ भी है कि उनको पता ही नहीं है कि उनको कहाँ जाना है और क्या एजुकेशन में आजकल इतनी सारी चीजें एजुकेशन में चल रहा है, नई नई चीजें चल रही हैं। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में उनको नहीं पता है, डिजिटल के बारे में नहीं पता। ये सबको स्मार्टफोन चला रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता है एजुकेशन। तो मेरा कहने का मतलब है कि एजुकेशन बहुत ही मस्त है। और हमें जो जहाँ पे हमें मतलब लाइक गवर्नमेंट को भी और प्लस जो पब्लिक सेक्टर में जो कंपनीज है, उनको मुझे लगता है एक एक गांव लेके और वहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए, तो काफी अच्छा रहेगा। और मैं मेरे एमएसडब्ल्यू के दौरान जब मैं क्या कहते हैं फील्ड वर्क कर रहा था, कमिटी वर्क कर रहा था जब मैं, और उसमें मैंने यहीं जेएनयू के वहाँ पे एक झुग्गी बस्ती है, मोतीलाल नेहरू कैंप। और मैंने जब वहाँ विजिट किया हाउस होल्ड सर्वे में, क्योंकि मेरी सुपरवाइजर ने बोला कि आपको प्रैक्टिकल वर्क करना ही है, उसके अलावा आपको डिग्री नहीं मिलेगी, है ना। मैंने कहा ठीक है, मैंने प्रैक्टिकल वर्क किया। जब मैं वहाँ गया देखा कि यूपी से एक लड़का है जो कि 12वीं में 85% मार्क्स लेके आया है, लेकिन उसको आगे कुछ नहीं कर सकता। और वो यहाँ पे आके उसके भाई और पापा ऑलरेडी लेबर का काम कर रहे थे कंस्ट्रक्शन में, और वो भी आके 3 महीने काम करके गया। क्यों? क्योंकि वो शायद हो सकता है कि एजुकेशन में अपनी फीस भर पाए, क्योंकि उसके घर वाले नहीं सपोर्ट कर पा रहे, क्योंकि बड़ी फैमिलीज है और वो नहीं सपोर्ट कर पाएंगे। और वो 3 महीने काम कर रहे। तो मेरी बात हुई उससे और मैंने बोला यार, एक अच्छे स्टूडेंट का भविष्य खराब हो जाएगा। तो मुझे लगता है मुझे यही मेरा सर्वे है और मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो फाइनली आई डिसाइडेड कि ठीक है, जो भी पैसा लगेगा एडमिशन में, जो भी होगा, मैं उसके लिए करूँगा। और आज की डेट मैंने उसका एडमिशन कराया और मैंने पूरे पैसे मैंने लगाए, एडमिशन कराया। और आज वो लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज में बीए में सेकंड ईयर में पढ़ रहा है। और मैंने उसको सब्जेक्ट भी एजुकेशन और सोशियोलॉजी दिलाया है एंड सोशल वर्क, ताकि वो आगे जाके ऐसे ही काम करे, क्योंकि बहुत जरूरी है। जो चीज हमने फेस किया है उसके बारे में हमें पता है, और आगे जो कम्युनिटी में जो लोग हैं वो ना फेस करे, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि मैं कई सालों से रितिंजली से निकलने के बाद जो चीजें मैंने सीखी थी, जो चीजें मैंने फेस की थी, वो सारी चीजें जब मैं लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, आज की डेट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं 30,000 लोगों को जानता हूँ, अलग अलग स्टेट में, जो कि अलग अलग जगहों पे लोग काम करते हैं और लोग रहते हैं। और मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ और एजुकेशन में, और लाइक फॉर कैरियर काउंसलिंग, 12th के बाद या 10th के बाद क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कौन सी यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं, कौन सी क्या कहते हैं कहाँ पे रहेंगे, वो सारी चीजें हम लोग जो कलेक्ट करके। और ऐसे में स्टेट वाइज मैंने यूपी में, क्योंकि मैं यूपी से हूँ, तो मेरा अभी टारगेट जो है यूपी को लेके है कि मैं एटलीस्ट कुछ वहाँ के लोगों के लिए कर पाऊँ। तो मैं वहीं पे कनेक्ट करके लोगों को और लोगों को करियर काउंसलिंग और आगे एडमिशन वगैरह में काम कर रहा हूँ। दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ हाउ वी स्टार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल कि एक इंडिविजुअल को क्या जरूरत है, बट टेक इट टू अ सिस्टमैटिक लेवल। करेक्ट। कि एक सिस्टम को भी सिस्टमैटिक तौर पे कैसे इंटरवेंशन जरूरी है टू मेक अ लार्जर इम्पैक्ट, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल आई डोंट थिंक फाइनेंशियली हर किसी की हेल्प कर सकता नहीं है, कर पाएगा, बट बिल्कुल। इफ अ सिस्टम चेंजेस, अगर एजुकेशन सिस्टम का पार्ट हो जाए वोकेशनल ट्रेनिंग, अगर हम वन साइज फिट्स ऑल वाली पाथवे छोड़ के हर एक लर्नर के ऊपर अलग नजर डाले, तो आई थिंक ये वाली चीजें काफी शिफ्ट हो जाएंगी कि जो ये टॉपर्स अलग अलग गांव से आ रहे हैं, बिल्कुल वो आगे अपना करियर अच्छा इमेजिन कर पाए। करेक्ट, राइट, वेरी सो राइट। फ्रॉम इंडिविजुअल टू द सिस्टमेटिक हाँ, होना चाहिए, होना होना चाहिए, चाहिए। राइट। लेकिन होगा, लेकिन मुझे लगता है अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारे जो एनजीओज हैं, बहुत सारे जो वो हैं, वो अभी तक कुछ जगह तक पहुंच रहे हैं, कुछ जगह तक नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन डेटा पे नहीं, मुझे लगता है कि जमीनी स्तर पे काम होना चाहिए। और यही है। मैं अपने आज की डेट में मैं आपको बताऊं कि मैं 4 बच्चों को मैंने अडॉप्ट किया है, और जिनकी एजुकेशन लखनऊ यूनिवर्सिटी में और क्रिश्चियन कॉलेज में मैं उनको खुद दे रहा हूँ, फंडिंग कर रहा हूँ अपने जेब से, और उनको पढ़ा रहा हूँ, ताकि मैं एक जनरेशन जो है वो चेंज करने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि जनरेशन चेंज हो जाएगी। That's a थैंक यू। great thing. That's a great thing. And moving on to वीरेंद्र now. वीरेंद्र, क्या आपको लगता है कि क्योंकि आप एक
बचपन में काफी काम किया है, उसके बाद अपना खुद का डिजाइन स्टूडियो की जो जर्नी रही है, तो क्या जी सोसाइटी आपको अलग तरीके से देख रही है? क्या आपकी खुद की फैमिली या खुद के आसपास के लोग आपको अलग तरीके से देखते हैं? हाँ, काफी मतलब ये था कि मैं पहले से काफी शांत था। लाइक जो कर रहा हूँ, ज्यादा किसी से मत नहीं रखता था। बट ये था कि जब यहाँ आने के बाद, दिल्ली आने के बाद, मेरा एक बात करने का तरीका, मेरा रवैया, मेरा समझाने का तरीका, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। और जब यहाँ पता चला कि लोगों को कि हाँ वीरेंद्र ये कर रहा है और यहाँ यहाँ इनके साथ डील कर रहा है, तो उनको मतलब जो होता ना कि जो चीज ना कोई देखा हो तो उसके लिए बहुत सारी बड़ी लगती हैं। इवन मैं ऐसा भी बताना चाह रहा हूँ कि मेरे गांव में फर्स्ट पर्सन हूँ कि जो मैं फ्लाइट से ट्रैवल किया हूँ। ये चीजें उनके लिए बहुत बड़ी चीज है कि फ्लाइट कैसी होती है अंदर से। तो कुछ या चीजें हैं उनके लिए कि हाँ भाई, मतलब यानी लड़का बहुत अच्छा काम कर रहा है, कुछ आगे जा चुका है, तो वो भी मेरे से पूछते हैं, बल्कि अपने लड़के के लिए, कि इनको क्या आगे बनाएं, क्या पढ़ाएं। तो जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मेरे समझ है, मैं बताता हूँ। इवन जो चीज मुझे नहीं पता, इवन मैं दूसरे से भी कांटेक्ट करके बताता हूँ कि अच्छा ये इस चीज में जाना चाह रहे हैं, इनके लिए क्या बेहतर है। तो ये चीज है, यहाँ सोसाइटी मुझे अलग नजर से अब ये देखती है कि पहले क्या था, किस वे में लड़का यहाँ पे घूम रहा था, टहल रहा था, लेकिन अभी किस वे में काम कर रहा है और किस वे में लोगों के साथ रह रहे हैं। Yeah, I think you have now become a mentor to other students or other learners from your surrounding. So keep that up, यस यस। Virender. ब्रिजेश, अब मैं जानना चाहती हूँ कि आप अच्छी खासी जॉब कर रहे थे कॉर्पोरेट में, राइट, राइट? राइट, अभी भी कर रहे हैं, राइट। लेकिन साथ ही साथ आपका क्यों मन किया अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? वो क्या, व्हाट वाज दैट मोमेंट व्हिच सेड दैट आई वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन? ओके, सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारे मतलब हार्ड को टच करता है, मतलब ये कब स्टार्ट करा। एक्चुअली कोविड का टाइम था, जैसे आप वीरेंद्र का भी जॉब लेस हो गया था और कई काफी लोगों को हमारे नोन में भी जॉब लेस हो गया था। तो मैं आईटी में था, तो आईटी में जो जब कोविड आया था तो आईटी का काम ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि सारा कुछ मतलब ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा था एंड ये सारी चीजें देखना। तो सबसे पहले जो जिस वर्क फ्रॉम होम हो गया, जिस बिल्डिंग में मैं रहता था सेम बिल्डिंग में मतलब मेरा सेकंड फ्लोर पे होता, उसका फर्स्ट फ्लोर पे था। जैसे टेरी ऊपर छत होता है, तो छत पे लोग बच्चे सुबह टहलने वगैरह रहते थे। तो जो मेरा नीचे वाला रूम था, वहाँ पे एक बच्ची थी, ठीक है। और किसी किसी बच्ची का क्या होता है, जैसे पढ़ने में वो काफी अच्छी होती है और इंटरेस्ट भी होता है, मतलब नहीं मुझे क्लास करना है, मुझे क्लास करना है। एक जब ऑनलाइन भी आया था तो लोगों को थोड़ा सा मतलब बच्चों का थोड़ा सा एक होता है ना कि देखने का, वो तो उनको भी काफी इंटरेस्ट लगता था वो करना। तो वो पढ़ने में भी ठीक ठाक थी वैसे। देन उसके पास एक लैपटॉप था। उस टाइम पे क्या होता, उसका लैपटॉप खराब हो गया था, ठीक है। ओके, तो उस टाइम पे उसका लैपटॉप खराब हो गया, तो रो रही थी काफी। तो जैसे सेकंड एंड थर्ड फ्लोर पे जैसे कोई रोता है तो आवाज आती है। देन सो रहा था, देन उठा एंड जैसे वर्क फ्रॉम होम घर पे भी तो फोन वगैरह चल रहे थे। जो मैंने नीचे देखा तो पूछा, मतलब एक आंट थी, भाभी जी क्या हुआ, क्यों बच्चा रो रहा? तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली इसका लैपटॉप खराब हो गया है और क्लास नहीं ले पा रही, इसी वजह से ये कर रही। बोले अच्छा, एक बार एक काम करो, मैं भी लैपटॉप का ही काम करता हूँ, एक बार मुझे दिखा दो, ठीक है। देन मैं लेके आया। उसमें रैम की प्रॉब्लम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी उसको बोलते हैं, वो डिस्प्ले प्रोवाइड उसका ऑन हो रहा था, डिस्प्ले नहीं दे रहा था। देन उसको मैंने ओपन करके चेक किया, देन रैम का प्रॉब्लम था। वो उसमें ना रैम में होता कार्बन लग जाता, क्लीन कर दो देन चल जाता। ओके, मैंने उस टाइम पे मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं, तो इरेजर था, ठीक है। इरेजर्स मैं उस लाइन में हूँ तो मुझे पता, इरेजर्स अगर उसको कंटिन्यू रब कर दो तो वो निकल जाता है। मैंने दोनों साइड से किया, देन लगाया, उसके बाद वो लैपटॉप ऑन हो गया, ठीक है। ऑन हो गया, देन वो जब उसको मैंने दिया, वो जैसे मतलब होता है खिलखिला के हंसना बच्चों का, जिस तरीके से हंसी थी। एंड दैट टाइम आई रियलाइज, नहीं यार मुझे भी मतलब कुछ अपना पर्सनल करना, देन ऐसे कुछ डोर टू डोर सर्विस देना इस कोविड में। देन उसके बाद मैंने डिसाइड किया नहीं मुझे कुछ करना है। तो मेन होता है कि करना तो है, पर फंडिंग वगैरह ये कैसे स्टार्ट करूंगा। अब पूरी नॉलेज तो एक होता है कि ठीक है मैंने टेक्निकल नॉलेज तो हो गया, पर अब मार्केट में उतरने के लिए मेरा कस्टमर कौन रहेंगे, मैं माल कहाँ से लाऊंगा, ये सारी चीजें दिमाग में थी। देन वो पहल का
फर्स्ट बैच जो था पहल का अपना है रितंजलि में, Yeah. देन उसमें मैंने इंटरेस्ट दिखाया, देन उसके बाद वो वहाँ पे हमारा टोटल 3 या 6 मंथ का जो था हमने कंप्लीट किया। उसमें काफ़ी चीज़ मुझे सिखाने को मिला, जैसे ना कस्टमर सेगमेंट कैसे बनाते हैं आप, जैसे कोई बिजनेस ओपन करो तो क्या क्या मेन पॉइंट होना चाहिए, देखना चाहिए कि कस्टमर कहाँ से, माल कहाँ से लाओगे, वेंडर आपके कैसे होंगे, ठीक है, वेंडर कहाँ से होंगे। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं ये ठीक है। देन आज के डिसाइड किया मुझे अपना खुद का करना। देन मुझे फर्स्ट बैच उसमें था कि जो मुझे फंडिंग मिली थी, देन मैंने अपना स्टार्ट किया ऑन डोर टू डोर सर्विस। So that's how I didn't know about this story. It's such a nice story कि आपके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से निकल कर आया है आपका बिजनेस प्लान, एंड आई होप यू डू वेल Yes. in your entrepreneurial journey. Now I think मेरा सवाल, लास्ट सवाल यही है कि आप लोगों के लिए अगर आप एक एक लाइन में मुझे बता सके आज आपके लिए सक्सेस के मायने क्या हैं, और आज के यंग लोगों के लिए सक्सेस के मायने क्या होने चाहिए, अगर आप उस पे एक एक लाइन अगर आप बता सके सभी तो काफी सही रहेगा। एंड देन वी विल गो ऑन टू द क्वेश्चन एंड आंसर एंड क्लोज द सेशन। राघव, तो मेरा जो कहना है ये कि पहली बात तो सीखने की जो चाह है वो बरकरार रहनी चाहिए, ठीक है, और अपने मेंटोर को सही मेंटोर को ढूंढना और उनसे सीखना बहुत जरूरी है। और यह सबको एजुकेशन कभी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एजुकेशन रुक गया, ठीक है, तो किताबी जो नींव है वो बहुत जरूरी है। और मैं तो मतलब यही कहूंगा कि पहले आप सीखिए, उसके बाद सीखने का रास्ता बनाइए, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। और मैं चाहूंगा सभी जो लोग हैं वो ऐसे ही करें, ताकि नेक्स्ट जो जनरेशन है वो उसके लिए काफी अच्छा रास्ता होगा। थैंक यू, थैंक यू। मेरे लिए तो सबसे पहले तो ये है, अपने ऊपर सबसे पहले ट्रस्ट रखो कि मतलब एक होता है कि ट्रस्ट रखना अपने ऊपर, बिलीव करो अपने ऊपर, बिलीव योर सेल्फ। एंड सबके अंदर एक ऐसी यूनिक होती है कि जो वही चीज उसको आगे ले जाती है। जैसे हमारे अंदर कुछ अलग यूनिक है एंड डिफरेंट, आपके अंदर कुछ अलग यूनिक होगा, इनके अंदर कुछ अलग यूनिक है, वही चीज उनको आगे बढ़ाती है। एंड उस यूनिक को एंड स्ट्रॉन्ग को पहचानो, देन आगे बढ़ो। यही हमारा। डेफिनेटली, डेफिनेटली। वीरेंद्र, आपको कुछ ऐड करना है? हाँ, मेरा बस एक लाइन ये है कि अभी कुछ लोग को ऐसा भी लग रहा होगा कि लाइक मैंने वहां से शुरू किया और आज मुझे यहाँ काम मिल गया, कि मैंने 2-4 जगह काम किया थोड़ा मेहनत से, लेकिन इसके पीछे ही बहुत मेहनत है। अब मैं आप लोग को बस एक लाइन में बताना चाहूंगा कि जब मैं रिसेंटली आया, जब ये सारी स्ट्रगल मेरे साथ आई थी, मुझे काम भी करना है, मुझे आगे बढ़ना, मुझे सीखना है, तो मैं एक क्लासेस नहीं जाता था। मेरा 12th भी चल रहा था, मेरे इंग्लिश स्पीकिंग की कोर्स चल रहे थे, मेरे कटिंग एंड टेलरिंग की चीज़ चल रही थी, मेरा AMT कोर्स चल रहा था, प्लस मेरा सैम्पलिंग कोऑर्डिनेटर चल रहा था। मैं एक साथ 6 स्कूल में जाता था पढ़ने। ये शायद लोगों को नहीं पता होगा। तो जो मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरा सुबह से 5 बजे निकलता था, रात के 11 बजे आता था, और ये रूटीन मैंने कंटिन्यू 1 साल तक फॉलो किया था, और तब मैं ये सक्सेस जाके मुझे मिला है। तो मेरा जो है कहने का मतलब कि आप कहीं मत रुको, आप कंटिन्यू लगे रहो। आप लगे रहोगे, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। दीज आर वेरी ब्यूटीफुल लर्निंग्स। राघव ने जैसे कहा कि लर्न करना कभी मत रोकिए, यू हैव टू कंटिन्यू लर्निंग। ब्रिजेश इज सेइंग कि अपने खुद के इंडिविजुअल पोटेंशियल को समझिए, अपनी यूनिकनेस को होन करिए। एंड वीरेंद्र उसको बोल रहे हैं कि उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है टू बिकम सक्सेसफुल, टू बिकम टू रीच दैट करियर जर्नी। सो थैंक यू फॉर ब्यूटिफुली टाइंग दैट अप। मेरे पास कुछ सवाल है जो पैनल्स जो ऑडियंस ने भेजे हैं फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप लोगों के पास कोई चांस हो टू रीडिजाइन द प्रोग्राम, जो आपने लर्निंग प्रोग्राम किया रितंजलि के साथ, तो उसमें ऐसी कौन सी चीजें जो आप उसमें और इंक्लूड करना चाहेंगे कि ये चीजें और मिलनी चाहिए या इस चीजों पे और ध्यान देना चाहिए whenever a student is going through a learning program? आप में से कोई? सो मुझे लगता है कि बहुत सारे जो प्राइवेट फंडर्स हैं और बहुत सारे जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं,
ठीक है, मुझे लगता है उसको भी ऐड ऑन करना चाहिए। और उससे क्या होगा कि जैसे आज के डेट में मुद्रा योजना है और बहुत सारी चीजें हैं, वो फिर उसमें सीख के, जैसे NSIC करवाता है बहुत सारे कोर्सेज, वहाँ पे सीख के और वो इजी वे में कर सकते हैं, प्लस कुछ सब्सिडी वगैरह भी है। तो मुझे लगता है उसको भी इंक्लूड करना चाहिए, और जिससे लोगों को और फायदा होगा, और जो लोग दूसरे की नौकरी कर रहे हैं वो शायद अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आई थिंक जैसे ऑफकोर्स हमारे पास एग्जाम्पल हैं दो, क्या कहते हैं, ब्रिजेश एंड वीरेंद्र। इन्होंने, इनको अपॉर्चुनिटीज मिली और इन्होंने पूरा अच्छे से और फिर अपना काम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आई थिंक एजुकेशन को वेलफेयर स्कीम्स के साथ करेक्ट, जोड़े, प्रोग्राम्स को अपने, करेक्ट, सो दैट रीच बढ़ जाए और सब्सिडी और सब चीजें आसान हो बहुत जाए। सारी चीजें। और मुझे लगता है एक और चीज की, वाई ओनली ऑन दिल्ली, हम्म है ना, हमें और भी एक्सप्लोर करना चाहिए। जैसे कि मैं यूपी से हूँ, तो मैं चाहूंगा कि भाई एक ऐसा सेंटर लखनऊ में हो, ताकि लखनऊ के युवाओं को और जो बाकी आसपास के जो गांव क्षेत्र से लोग हैं, वो दिल्ली नहीं आना चाहते हैं, नहीं आ सकते, तो क्या उनके लिए हम कोई ऐसा ओपन डोर कर सकते हैं कि वो लोगों को भी मौका मिले और वो लोग भी कर सके। Yeah, I think Raghav, this is a very good idea. This is Ritinjali's 5-year plan that to take second chance school to local communities and build centers there, so that we can escalate the education journey of learners locally. So thank you for like giving that input as well. जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि कैसे हम, how do you continue learning today? What does lifelong learning looks like for you now? कि जिंदगी भर हम कुछ सीखते रहे, कुछ पढ़ते रहे, ये क्यों जरूरी है और ये अभी कैसे करें? अभी तो आप जॉब कर रहे हैं सब, तो लाइफ, हाउ इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग हैपनिंग फॉर यू? वीरेंद्र और ब्रिजेश, अगर आप कुछ बता पाए इस पे। अ, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ होता है कि अगर आप बंद कर देते हो, मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ कि कोई चीज़ अगर बंद कर देता हूँ तो ऑटोमेटिक वो माइंड से चला जाता है। एंड नई नई चीज़ें जो आती हैं तो उसको जरूर लर्न करना चाहिए, क्योंकि आज के जो तो टेक्निकल जमाना है। ठीक है, यूट्यूब पे पूरे भरमार पड़े हुए हैं, आप कुछ भी वहां से सर्च करो। एंड मतलब मेरा पर्सनल ये है कि आप ना शाम को या मॉर्निंग में अराउंड आप 20 मिनट अगर लर्निंग के लिए दे रहे हो तो आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। डेफिनेटली ठीक हर है, दिन हर दिन से लर्निंग, एंड क्योंकि चीजें हर बारी चेंज होती रहती है होती आपके रहती खुद हैं। के सेक्टर में, आपकी खुद की चीजों राइट, में, सो उस डायरेक्शन में अगर हम जाएं तो काफी बेहतर रहेगा। राइट। थैंक यू फॉर दैट। आई थिंक वीरेंद्र, ब्रिजेश, राघव, आप लोगों से इतनी फॉर्मली और इनफॉर्मली बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड होपफुली सारे ऑडियंस हैव एंजॉयड दिस कॉन्वर्सेशन एंड गेन्ड इनसाइट। क्या जो स्किलिंग सेंटर के बच्चे हैं उनमें से कोई सवाल पूछना चाहेगा? इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस। Aman, Reena ji, do you have students that have any questions? We will love to take that up. अगर नहीं है तो आई विल मूव ऑन टू द क्लोजिंग, एंड आई थिंक मैं सभी के बिहाफ पे थैंक यू बोलना चाहती हूँ आप लोगों का यहाँ पे आने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, द ऑडियंस एज वेल एज द पैनलिस्ट। हेलो I think it was a very enriching conversations for me. Aman, मैम, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है। पास आके बोल सकते हैं, हमें आवाज नहीं आ रही। मॉर्निंग मैम। हेलो। हेलो मैम, आवाज आ रही है? यस। भैया, जैसे आपने बताया कि आपने जो भी जर्नी अपनी शेयर की, मेरे क्वेश्चन है, जैसे मेरे से साथ कभी कभी होता है कि ज़्यादा थ्योरेटिकली वर्क हो जाता है, मतलब ज़्यादा कॉलेजेस में पढ़ा देते हैं मेरे पे, मतलब कंसंट्रेशन खराब हो जाता है, जिस वजह से तो मैं उस हिसाब से कैसे उसको मेंटेन कर सकूं, मतलब। ओके, इसका मैं जवाब देना चाहूंगा। प्लीज वीरेंद्र। अ, हाँ, कभी कभी ऐसा होता है जो हमें कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, लाइक हम कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, जो चीज़ वहाँ पढ़ाया जा रहा है हो सकता है उनके पढ़ाने का तरीका कुछ अलग हो, उनका समझाने का तरीका कुछ और हो, हमारे अंदर कुछ और अब्जॉर्ब हो रहा। लेकिन जब हम
एक्चुअल काम करने जाते हैं, जैसे हमने बताया ना, जब हम एक्चुअल काम करने जाते हैं तो उसकी रियलिटी पता चलती है कि जो हमने सीखा वो आई थिंक जो पढ़ा था तो उसमें हमने कहाँ गलती किया था, जहाँ कहाँ मिस किया था। तो ये कभी मत सोचो कि मतलब ओवर थिंकिंग या ऐसा कि हमको नहीं आ रहा है या हमें नहीं समझ में आया या जो चीज उन्होंने बताया। तो आप मतलब उस चीज को जब दोनों जगह से देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। आप जब उस पे काम करोगे और जो पढ़ाई कर रखे हो उसको दोनों मर्ज करोगे तब उसकी फाइनल आंसर आपको मिलेगा। भैया तो कभी कभी जब समझ में नहीं आता तो फिर लगता है कि छोड़ देना चाहिए, मतलब क्विट कर देना चाहिए, बट फिर सोचते हैं कि बीच में आ गए हैं तो यहाँ से देखो पीछे हो गए तो जिंदगी। छोड़ना हल नहीं है। कभी भी अगर फिर आगे अगर कोई काम कर रहे हो, कोई बिजनेस में कोई बड़ा प्रॉब्लम आ गया तो आप छोड़ के पीछे देखो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कभी ऐसा नहीं है कि आप कदम बढ़ाओ हमेशा सक्सेस मिल जाता है, मैं ये भी इसके भी वो हूँ। आप कहीं कहीं फेल भी होते हो लेकिन उसको कभी भी एज अ फेल मत देखो, फेल क्यों हुए उसका रीजन पकड़ो। क्या पता आप एक कदम पे फेल हुआ, अगले कदम पे जब दोबारा कदम बढ़ाओगे तो पता चलेगा ना कि यहाँ पे हमने ये गलती किया था, चाहे उसी सेक्टर में चाहे और किसी सेक्टर में फेल किए हुए, सबसे पहले वो रीजन आप निकालो कि मैं हमने ऐड गलती करना किया था। चाहूंगा वीरेंद्र। यस। हेलो। हाँ। सो बेसिकली मुझे यस। लगता है कि जब हम काम करेंगे तो गलतियां होंगी और गलतियों से हमें सीखना होगा, राइट। और जब तक हम यस। गलतियां नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे नहीं, और क्योंकि अपडेट अपने आप को करना है, ठीक है, तो नए नए चीजों पे आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। और जो पढ़ाई है, जैसे पढ़ाई के बारे में आपने बताया कंसंट्रेशन नहीं होता है और कैसे वो पढ़ा रहे हैं और कैसे समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए कि आपको भी उतना ही इनपुट लेना पड़ेगा, क्योंकि जितना टीचर्स ले रहे हैं, जितनी किताब आपको दे रही है, उसके अलावा आजकल तो स्मार्ट जमाना है ना, स्मार्टफोन्स है, आपका यूट्यूब है, बहुत सारे गूगल्स है, अभी एआई भी आ गया है, तो बहुत सारे आंसर्स आपको वहां से मिलेंगे जो करेक्ट आंसर्स होंगे। हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि कुछ लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है, कुछ लोगों को देर से समझ में आता है। जैसे मुझे मुझे 2-3 बार जब तक कोई चीज ना बताया जाए तो मुझे समझ नहीं आता है, तो होता है ऐसा। और लेकिन उसको छोड़ना हल नहीं है, उस पे काम करना, करते रहना, तभी आपको वो सक्सेस मिलेगा। ठीक है, एक ना एक दिन मिलेगा जरूर। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज आपसे ना हो Impossible. पाए, है ना। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, सब कुछ पॉसिबल है। Yeah. थैंक यू। I think Ratnesh, lage raho. That is our thing. Ki one day it will come to you, and don't leave things, and keep making the efforts and reach out to different people, reach out to different mentors, so that you're able to gain insight. Yeah. तो इसी उस पे नोट पे आई वुड लाइक टू क्लोज द वेबिनार and formally thank everyone for joining us, and I would like to thank all our team members at PLS, CEP and Ritinjali who helped in organizing the webinar and ensuring that the whole process is seamless, and also the thank to our moderators, थैंक यू। moderators and panelists, इतनी पर्सनलाइज्ड इंसाइट देने के लिए, इतना वल्नरेबल होने के लिए हमारे साथ। बहुत ही अच्छा लगा मुझे आप लोगों से जुड़ के, एंड आई होप वी डू ऑल these kind of webinars in future to connect with the young learners as well as the stakeholders that are connected to us. Thank you everyone. Yeah. थैंक यू ऑल ऑफ। Thank you, everyone. Thank you to Ritinjali and the partners who give us wonderful support and keep supporting us. Thank you. Thank you.